الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ صف بندی کے سلسلے میں جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، ان مسائل کے ضمن میں ایک مسئلہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، اور یہ بھی ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جو بسا اوقات پیش تو آتا ہی رہتا ہے، بسا اوقات آپس میں اختلاف کا بھی باعث بن جاتا ہے۔ وہ مسئلہ ہے ستونوں کے بیچ میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ یہ بات اس سے پہلے جو مختلف حلقے ہوئے، ان حلقوں میں مختلف روایتیں ہمارے سامنے سے گزریں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں یہ بات پائے ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے کہ صفوں کو جوڑنے کا حکم ہے، کاٹنے کا یا صفوں سے کٹنے کا، درمیان میں فاصلہ بنائے رکھنے کا، فاصلہ ہو تو اسے نہ بھرنے کا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس سے منع کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں واضح طور پر تلقین موجود ہے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ستون اگر ہوں، ظاہر ہے کہ عمارتیں ستون پر قائم ہوتی ہیں، اگر کوئی چھوٹی جگہ ہے تو ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی ستون نہ ہو اور ایک ہی میدان ہو، ایک ہی کھلی جگہ ہو بغیر ستون کے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک مقدار کے بعد یہ چیز ممکن نہیں ہے، بلکہ ستون کی ضرورت ہوتی ہے بیچ میں، اور ستونوں کی وجہ سے صفوں میں انقطاع پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں صفوں کو نہ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، صفوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، ان پر رحمت کی دعائیں کی گئی ہیں، اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کی بات بتلائی گئی ہے۔ ایسی صورت میں ستونوں کے بیچ میں آنے کی وجہ سے صفیں کٹ جاتی ہیں، ستونوں کے بیچ میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ دیکھیے، یہاں پر ایک بات واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ مسئلہ مقتدیوں سے متعلق ہے، نہ تو امام سے متعلق ہے اور نہ ہی منفرد سے متعلق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ہے، وہ کسی دو ستون کے بیچ میں کھڑے ہوگا اور سامنے سترہ رکھ کر کے نماز پڑھائے گا، یہاں کوئی پیچیدگی نہیں۔ ایسے منفرد اگر کوئی ہے، یعنی اکیلا تنہا نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی مقتدی نہیں، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کسی بھی دو ستونوں کے بیچ میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ ہے مقتدیوں سے متعلق کہ مقتدی حضرات صفوں کے بیچ میں، ستونوں کے بیچ میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں بھی ایک بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اگر ضرورت ہے، مجبوری ہے، جگہ کی قلت ہے مثال کے طور پر، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں یہ مجبوری جو ہے اس چیز کو جائز کر دے گی، اور یہ چیز جائز ہو جائے گی کہ ستونوں کے درمیان نماز پڑھی جائے، گرچہ صفوں کے انقطاع لازم آتا ہو۔ لیکن اگر ضرورت نہیں ہے گنجائش، ستون والا حصہ، ستون جن ستونوں پر صف بن رہی ہے، اگر اس صف کو چھوڑ دیا جائے، ستونوں کی لائن کو اگر چھوڑ کر کے پیچھے ہٹ جایا جائے اور گنجائش ہے وہاں صف بندی کر لی جائے، اس کا امکان ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ جب گنجائش موجود ہے تو ستونوں کے بیچ میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ کم از کم یہ کراہت سے خالی نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سلسلے میں کئی ایک حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کی روایت ہے، ان کی شاگرد جو ہے عبد الحمید بن محمود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، ہم نے کسی امیر کے پیچھے، امیر من الامراء نام نے بیان کیا گیا، کسی امیر کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی، یعنی اس کی اقتداء میں نماز پڑھی، فَدَفَعُونَا حَتَّى قُمْنَا وَصَلَّيْنَا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، تو لوگوں نے دھکا دیا اور ہمیں ہٹایا، دھکا دینے کی وجہ سے ہمیں مجبوراً دو ستونوں کے بیچ میں نماز پڑھنا پڑا۔ کہتے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں، فَجَعَلَ أَنَسٌ يَتَأَخَّرُ، ہوا یہ کہ جب لوگ دھکا دینے لگے، ہٹانے لگے، تو پیچھے ہٹنا پڑا، اور پیچھے ہٹتے ہٹتے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں دو ستونوں کے بیچ میں نماز پڑھنا پڑا۔
अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, क़द कुन्ना नत्तक़ी हाज़ा अला अहद रसूलिल्लाह, कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इससे बचते थे। यानी अल्लाह के नबी के ज़माने में सुतूनों के बीच में नमाज़ पढ़ने से हमें मना किया जाता था और हमें बचने का हुक्म दिया जाता था, और हम बचते थे, इससे दूर रहते थे, कोशिश करते थे कि हम ऐसी जगह नमाज़ पढ़ें जहाँ सफ़ों में इन सुतूनों की वजह से इनक़िता लाज़िम ना आता हो। कहते हैं ऐसे दूसरी रिवायत के अंदर ये है, रावी बयान करते हैं कि सल्लैतु मअ अनस बिन मालिक यौमल जुमुआ, मैंने अनस बिन मालिक के साथ जुमे के दिन नमाज पढ़ी किसी अमीर के पीछे इमामत में, तो लोगों ने हमें धक्का दिया, यहाँ तक कि हमें सुतूनों के बीच में नमाज पढ़ने की नौबत आ गई। बहरहाल इससे वाज़ेह होता है रिवायतों से कि मजबूर हो करके ये सुतूनों के बीच में नमाज पढ़ने लगे। मजबूरन लोगों के धक्का देने की वजह से कहीं गुंजाइश नहीं बची तो सुतूनों के बीच में आ गए और फिर नमाज वहीं पर पढ़ना पड़ा। तो इससे क्या पता चला, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हमें अल्लाह के नबी के ज़माने में इससे बचने का हुक्म दिया जाता और हम बचते थे, जैसा कि यहाँ पर अनस बिन मालिक की रिवायत में अल्फाज मौजूद हैं। ऐसे ही हज़रत कुर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कुन्ना नुन्हा, ये लफ्ज़ आप देखें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से कहते हैं कुन्ना नुन्हा अन नसुफ़्फ़ा बैन सवारी अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नुतरदु अन्हा फ़र्दन। रिवायत में क्या है, हमें मना किया जाता था, और आप ये ताबीर जानते हैं, कुन्ना नुअमरु कुन्ना नुन्हा, हमें हुक्म दिया जाता था अल्लाह के रसूल के ज़माने में, हमें मना किया जाता था अल्लाह के रसूल के ज़माने में, इसका हुक्म दिया जाता था, इससे मना किया जाता था। ये ताबीर जब साहबी बयान करे तो उसका मतलब होता है कि वो मना करने वाली ज़ात और हुक्म देने वाली ज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इसको हुक्मन मरफू कहा जाता है, और ये मरफू के हुक्म में है और बिलाशुबा मरफू के हुक्म में है। बहरहाल तो कहते हैं कि हमें हुक्म दिया जाता था कि हमें मना किया जाता था कि हम सुतूनों के बीच में सफबंदी करें, सुतूनों के बीच में सफबंदी ना करो। अल्लाह के नबी की तरफ से गोया ऐलान होता था, साथियों सुतूनों के बीच में सफबंदी न करो, बल्कि उससे पीछे हट करके सफ लगाओ जहाँ पर सुतूनों की वजह से इनक़िता न पैदा होता है। बहरहाल कहते हैं व नुतरदु अन्हा फ़र्दन, और हमें वहां से धक्के दे करके हटाया जाता है। आप देखिए कि अगर कोई सफ के बीच में, सुतूनों के बीच में, दो सुतून के बीच में नमाज पढ़ रहा हो तो लोग उसे हटा देते, नहीं यहाँ नहीं पढ़ना, इधर आओ। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये सहाबे किराम अपना वाक़या बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और उस ज़माने का वाक़या बयान करते हैं। इससे पता चलता है कि सफ़ों के दरमियान जो सुतून हाइल होते हैं, इन सुतूनों के बीच में नमाज पढ़ना ये दुरुस्त नहीं। जब मना किया जाता था, मना तो असल ये है कि ममनू है, असल ये है कि ममनू है, और असल ये कि उसे हटाया जाए, लोगों को न नमाज पढ़ने दिया जाए सुतूनों के बीच में। लेकिन जाहिर है कि अगर इज़्तिरार हो, मजबूरी हो, मस्जिद में जगह की किल्लत हो, जुमे के दिन खास तौर पर, या ऐसी और कोई ऐसी मुनासबत हो, ईदैन वगैरह का मसला हो, बस औक़ात अगर नमाज ईदैन की जुमे मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की नौबत आ जाए, खुली फिजा में, खुले मैदान में, अगर नामुमकिन हो तो ऐसी सूरत में लोगों की वजह से, कसरत की वजह से जगह की किल्लत होती है, और ऐसी सूरत में ये इज़्तिरारी सूरत बन जाती है कि सुतूनों के बीच में नमाज पढ़ना पड़े, तो ये इज़्तिरारी सूरत है। लेकिन आम पंजवक्ता नमाजों में, उन मस्जिदों में जिन मस्जिदों में जुमे की मुनासबत पर या किसी और मुनासबत से भीड़ की वजह से, तादाद की ज़्यादा होने की वजह से अगर सुतूनों के बीच में भी नमाज पढ़ने की नौबत आती है, उन मस्जिदों में भी होना ये चाहिए कि पंज वक्ता नमाजों में वो सफबंदी जब करें तो सुतूनों वाली सफ को छोड़ दें और उसके पीछे सफबंदी करें, जहां बगैर किसी इनक़िता के सफ बनाना मुमकिन हो। तो ये होना चाहिए। ये हदीस ये इस माने की कई हदीसें मौजूद हैं और सरीह रिवायतें हैं। इससे पता चलता है कि सफ़ों के दरमियान सुतूनों का इनक़िता भी नहीं होना चाहिए। असल ये है कि बचना चाहिए। मेरे भाइयों, हम और आप इसकी बहुत वाज़ेह मिसाल बड़े पैमाने पर जो हम देखना चाहें तो हम हरमैन शरीफैन में देख सकते हैं, मस्जिद हराम में, और ऐसे ही मस्जिद नबवी के अंदर, के चूँकि बड़ी मस्जिद है, लाखों में लोग वहाँ नमाज पढ़ते हैं, और ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी मस्जिद जो है वो बगैर सुतूनों के और बहुत ज़्यादा सुतूनों के बगैर उसे बनाया नहीं जा सकता, इज़्तिरारी सूरत है। इसलिए फिर एक मसला ये भी आता है कि वहाँ हमेशा नमाजी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही मिसाल के तौर पर मेरे भाइयों, सुतूनों की कसरत भी है। अगर सुतूनों को छोड़ करके नमाज पढ़ी जाए मिसाल के तौर पर, तो इस सुतूनों के बीच की जगह को छोड़ने की वजह से भी बहुत बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद में लोग मेरे भाइयों नमाज की जगह नहीं पा सकेंगे। तो ये एक सूरत हाल है इज़्तिरार की।
ऐसी कोई सूरत हो, कहीं भी हो, मिसाल के तौर पर हमारी मस्जिदों में भी, तो ये चीज़ है गुंजाइश इस्तरार की बुनियाद पर, वरना असल ये है कि असल पर अमल करते हुए सुतूनों के दरमियान नमाज न पढ़ी जाए ताकि इनक़िता ना हो। मुक़्तदियों की बात चल रही है, ज़ाहिर है कि इसके अंदर इमाम और ऐसे मुनफरिद नहीं आते क्योंकि उनके लिए इश्काल नहीं है। बहरहाल अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको चाहिए कि इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जहाँ तक हो सकें हम सुतूनों के दरमियान, पिलर्स के दरमियान नमाज पढ़ने से बचाएं अपने आप को, साथियों को भी बताएं। ये माहौल होना चाहिए, क्योंकि इस सिलसिले में लोगों को या तो मालूमात नहीं है, कम है, या लोगों में बेदारी नहीं है। होना ये चाहिए कि इस सिलसिले में बेदारी पैदा की जाए और लोगों को ये बावर कराया जाए कि नमाज अगर गुंजाइश हो तो इनक़िता के साथ न पढ़ें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।